Hello and Jain friends, welcome to this special session dedicated to current affairs in which we will going to discuss about the schemes, government schemes, more specifically central government schemes which play a very vital role in the polity and governance of India. And as we all know, since last many years, the weightage of these schemes in our exam is steadily increasing. So it is important from our side to study the entire scenario. Plus, as we all know, we are living in a NDA regime, which is a very vibrant government, plus very active government. So there are many schemes introducing every day. But here we will take a brief look about the schemes which are actually came in news for one reason or the other. Right from the January to December, in our this particular lecture, we will discuss about the schemes from January to June, which became a part of current affairs for one or a more reason, for one or any other reason. And in our part second, we will conclude it from the schemes June to December 2020. As we can see in the screen, Narendra Modi led government, NDA government is actually very active, as we talked about. So there are many schemes, there are many yojanas, there are many campaigns which are actually run by government for alleviation of poor, for alleviation of unemployed people. So this becomes a very vital for our discussion. This becomes very important for our today's discussion. So we will start right from the January and we will conclude to June in this particular lecture. Let us see, it will be a fast track session as we have to cover number of schemes, as we have to go through each of them. The first scheme we will discuss, let me tell you first, we will discuss it in a monthly base. So we will start from January 2020 and we will head ahead as our lecture progresses. First one, scheme for textile park. As we can see the photograph, the one photograph is of textile manufacturing unit and the other is of Ministry of Textile, which is responsible for this particular scheme. देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स की बात भी करेंगे, ऑब्जेक्टिव से साथ साथ जो की फीचर्स है पर्टिकुलर स्कीम के उसके बारे में भी देखेंगे, यानी कि उसके लक्षण की बात करेंगे कि क्या लक्षण है, यानी कि प्राथमिक उद्देश्य देखेंगे, प्राथमिक उद्देश्य के साथ साथ उसके लक्षण भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। यह प्रथम स्कीम है जो जनवरी में कुछ ना कुछ आप कह लीजिए कारणों से चर्चा का विषय रही है, करंट अफेयर्स का भाग रही है। और इस पर्टिकुलर स्कीम में जो रेफरेंस है वो है कि केंद्र सरकार जो है वो एक इंटीग्रेटेड मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना कर रही है या बनाना चाह रही है। सो दिस इज व्हाई द स्कीम इज सरफेस्ड इन द करंट अफेयर्स, और उसको ही देखेंगे, उसका ही जो है अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। सबसे प्रथम ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसके तहत टू प्रोवाइड इंडस्ट्री विथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। यस, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो इन उद्योगों को या इन एकमों को बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्राइस, या आप कह लीजिए कॉस्ट प्राइस, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गुड क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि। तो सरकारी जो योजना है ये उसका बहुत ही अच्छा उद्देश्य है, और आज जो हमारा टेक्सटाइल यूनिट या टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो आज मृतप्राय में फिर से जान आ सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम इस नजरिए से हम कह सकते हैं। उसके बाद टू फैसिलिटेट टेक्सटाइल यूनिट्स, विच मीन्स टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, will be done, यानी कि a type of advancement will be done and they will match the international standards. उसके बाद देखें तो टू मोबिलाइज इन्वेस्टमेंट, यस, गवर्नमेंट ये भी भरपूर प्रयास करेगी कि ये पर्टिकुलर क्षेत्र में, इस सेक्टर में, यानी कि टेक्सटाइल क्षेत्र में या आप कह लीजिए कापड़ उद्योग में सरकार जो है वो प्रयास करेगी और जो फंड है, जो इन्वेस्टमेंट है उसको इस सेक्टर में डाइवर्ट करने का प्रयास करेगी। इसमें एफडीए का भी समावेशन हम कर सकते हैं।
सरकार एफडीआई भी यहाँ डायरेक्ट करेगी। हालांकि पिछले 10 वर्षों में 15 वर्षों में जो एफडीआई अट्रैक्ट हुई है भारत में, उसमें टेक्सटाइल का जो रेशियो है वो बहुत ही कम है। तो इसको बढ़ाना है वो सरकार की प्राथमिकता है, और इसीलिए सरकार जो है वो एक इंटीग्रेटेड मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना कर रही है। साइलेंट फीचर्स देखें अगर इस पर्टिकुलर योजना के, तो इट विल बी लॉन्च्ड बाय मर्जिंग 2 स्कीम्स। 2 पर्टिकुलर स्कीम्स को मर्ज कर यहाँ एक स्कीम में उसको परिवर्तित करना है, उसको रूपांतरित करना है। और ये जो पर्टिकुलर 2 स्कीम है वो एक थी अपैरल पार्क एक्सपोर्ट स्कीम, यानी कि APES। मैं यहाँ पूरा नाम लिखने से बचूंगा ताकि हमारा समय जो है वो बर्बाद ना हो। और दूसरा जो होगा वो होगा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम। ये दोनों ही स्कीम 2002 में शुरू हुई थी, मगर इन लोगों को मिलाकर 2005 से सरकार ने यह मेगा पार्क बनाने की योजना का जो है विचार कर लिया। ये दोनों ही थोड़ी पुरानी स्कीम्स है, मगर इन दोनों को एक करके, इन दोनों को इंटीग्रेटेड करके एक बढ़िया स्कीम, एक एक्सटेंसिव स्कीम जो है उसको लागू करने का गवर्नमेंट ने जो है सोचा है। लॉन्च टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट। यस, जैसे मैंने आपको बताया कि यह पूरा जो क्षेत्र है उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए। द एंटायर टेक्सटाइल सेक्टर नीड्स इन्वेस्टमेंट, द एंटायर टेक्सटाइल सेक्टर नीड्स FDI। तो उसको एनकरेज करने के लिए भी यह कदम जो है वो सरकारी तरफ से उठाए गए हैं, ताकि हमारा टेक्सटाइल जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़िया हो। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ देखिए, यहाँ अगर हम कोई मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं तो सिर्फ आंकड़े बढ़ाने की ही बात नहीं है, ठीक है, मगर इट विल एक्चुअली बेनिफिट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इट विल एक्चुअली बेनिफिट in our program of alleviation of poverty. It will actually increase standard of living. And जहाँ ये पार्क होंगे, जहाँ ये पार्क प्रस्थापित होंगे, उन जगहों की जो प्रादेशिक इकोनॉमी है, जो प्रादेशिक अर्थतंत्र है, वो भी वाइब्रेंट होगा, उसमें भी जो है जान आएगी। तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है सरकार के द्वारा। प्लस टेक्सटाइल की अगर हम बात करें, कापड़ की, तो मेनली जो कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, द स्टेट्स विच आर फ्रंट रनर इन कॉटन प्रोडक्शन, वहीं जो है ये पार्क जो है वह प्रस्थापित होने वाले हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश सर्वप्रथम और उसके बाद गुजरात। As we all know, these both are front runners in the production of cotton। तो ये दोनों राज्यों को ही टारगेट कर ये प्लांट स्थापने की बात हुई है। ये प्लांट स्थापने की जो है प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। इसमें से आंध्र प्रदेश में कुछ 5 या 6 ऐसे मेगा प्लांट को प्रस्थापित किया जाएगा, और वहीं जो गुजरात है वहाँ 12 या 13 प्लांट्स को प्रस्थापित किया जाएगा, जो कि एंटायर आंध्र प्रदेश की और एंटायर गुजरात की इकोनॉमी को एक वेग देगा, उसको एक हाइक देगा, या आप कह लीजिए एक प्रकार का सपोर्ट देगा। उसके बाद PPP मोड है, हम सब वाकिफ है। PPP मोड यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सरकार भी साथ होगी, प्राइवेट प्लेयर्स भी साथ होंगे, जो कैपिटलिस्ट हैं वे लोग भी साथ होंगे, और ये पूरा का पूरा जो आप कह लीजिए इंटीग्रेटेड मेगा पार्क है वो बनाने की योजना है। और अगर उसमें फंडिंग की बात करें तो 40% विल बी फंडेड बाय गवर्नमेंट, 40%, और अन्य जो फंड है वो किसी और नाणाकीय स्रोत से निकाले जाएंगे, वहां से लिए जाएंगे। तो ये पूरी योजना है। अगर प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो कुल 59 पार्क्स को सैंक्शन किया गया है। सैंक्शन टिल डेट, उसमें से 22 जो है वे कंप्लीट भी हो चुके हैं और दूसरों के ऊपर काम चल रहा है। हालांकि प्रोग्रेस थोड़ा स्लो है, मगर स्लो एंड स्टेडीली जो काम है वो चल रहा है। उसके बाद अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि FDI जो है वो भी थोड़ा कम आया है इस पर्टिकुलर क्षेत्र में। तो 2019 के अगर आंकड़े देखें तो कुल 20,000 करोड़ का FDI आया है। देखिए ये स्पेसिफिक आंकड़ा नहीं है, ये कुछ 19,338 है, मगर यहाँ 20,000 कहना उचित है। तो 20,000 में से सिर्फ 9%
जो फंड है वो टेक्सटाइल में आया है। तो ये भी गवर्नमेंट को ध्यान में रखना होगा और इस तरह ही अपनी जो नीतियां हैं वो उन लोगों को फॉलो जो है बनानी होगी, फ्रेम करनी होगी। प्लस आजकल गवर्नमेंट ये भी सोच रही है कि एक मेगा टेक्सटाइल पार्क प्रस्थापित करे जिसका क्षेत्रफल 1000 एकड़ से ज्यादा हो या अधिक हो, मोर देन। तो ये भी गवर्नमेंट के ध्यान में है और ये जो मेगा टेक्सटाइल पार्क्स जो प्रस्थापित होंगे वहाँ बेसिक फैसिलिटीज से लेकर जो जरूरी चीजें हैं वे सब गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, ऐसा विचार जो है वो आज की सरकार कर रही है। उसके बाद अगर दूसरी जनवरी की स्कीम देखें तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है। वी ऑल नो अबाउट द पर्टिकुलर कैंपेन जो कि नीति आयोग के द्वारा चलाया जा रहा है। और नीति आयोग भी हमें मालूम है कि यह एक प्रकार की थिंक टैंक है, सरकारी थिंक टैंक है जिसने प्लानिंग कमीशन का स्थान लिया है। प्लानिंग कमीशन एक जो है पुरानी एक आप कह लीजिए एक ऐसा आयोग था जो कि और इंडिपेंडेंस एरा से भारत की इकोनॉमिक प्लानिंग करता आया है, भारत का ग्रोथ इंजन बनता आया है, मगर इट सीम्ड बिट इनइफेक्टिव क्योंकि उसमें कोई फेरफार के प्रावधान नहीं थे, इसलिए अब वो आउटडेटेड हो गया था। और इसलिए हमारी सरकार ने, यह एनडीए की सरकार ने 2015 में प्लानिंग कमीशन को हटाकर नीति आयोग को स्थापित किया और नीति आयोग ने यह जो स्कीम है वो शुरू की है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसका मूल उद्देश्य है कि जो बिछड़े या आप कह लीजिए जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है उन डिस्ट्रिक्ट्स को एलिविएट किया जाए। पहले तो उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उसके बाद जो है उनके ऊपर संसाधनों की बारिश किया जाए, उन संसाधनों को अच्छी तरीके से जो है उपयोग में लिया जाए और इनकी परिस्थिति में सुधार किया जाए। प्लस नीति आयोग का बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो है पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट्स। पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट्स, क्योंकि प्लानिंग कमीशन में ऐसे कोई प्रावधान नहीं थे जहां स्टेट्स का आवाज हो, स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन हो, मगर यहां इसका जो स्ट्रक्चर है ये इक्वली स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाला है। यहाँ जो नीति निर्माण की प्रक्रिया होगी उनमें स्टेट जो है वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। तो ये थोड़ा एक फंडामेंटल डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। देखेंगे ये आगे स्कीम हमारे आज के न्यूज में क्यों आई है। देखिए ऑब्जेक्टिव में टू ट्रांसफॉर्म सिलेक्टेड बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, यस टू ट्रांसफॉर्म सिलेक्टेड बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, पहले तो आइडेंटिफाई, फिर उस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर संसाधनों की बारिश की जाए, यानी कि उन लोगों को जो है अच्छे संसाधन दिए जाए एलिवेट करने के लिए, अपना स्थान सुधारने के लिए, प्रोवाइड रेजिस्टेंस, और बाद में उन लोगों का जो बिछड़ापन है वो दूर किया जाए, वो खत्म किया जाए। उसके साथ टू फोकस ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट, यस ये एक नया कॉन्सेप्ट है। देखिए प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट जो होता है वो अपने आप में एक विशेष होता है, उसकी कुछ विशेषताएं होती है। तो यहाँ ऐसा कहा गया है इस प्रोग्राम के तहत कि किसी भी जिले को, किसी भी आप कह लीजिए डिस्ट्रिक्ट को पहले तो देखना होगा कि वो डिस्ट्रिक्ट कौन से क्षेत्र में सक्षम है, ठीक है। फिर उस क्षेत्र को आइडेंटिफाई करके सबसे प्रथम उस क्षेत्र में एडवांसमेंट किया जाएगा, ताकि जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है, जो हमें आसानी से तुरंत मिलने वाले परिणाम है, वो परिणाम हमें मिलते चले। लो हैंगिंग फ्रूट्स आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन सा जिला है, उसमें क्या सक्षमता है, क्या पोटेंशियल है, और उसके ऊपर उसकी नीति जो है वो घड़ी जाएगी, वो नीति इंप्लीमेंट होगी। प्लस इसका जो न्यूज रेफरेंस है वो है डेल्टा रैंकिंग। डेल्टा रैंकिंग जैसे यहाँ लिखा हुआ है 115 राज्य है जो चयनित है, जो सिलेक्टेड है नीति आयोग के द्वारा,
उसमें से उनकी जो आंतरिक प्रतिस्पर्धा है उसमें कौन टॉप कर रहा है, ठीक है, उसे डेल्टा रैंकिंग कहते हैं। और उस डेल्टा रैंकिंग के लिए कुछ 49 मानदंडों का सहारा लिया गया है। देयर आर 49 पैरामीटर्स स्प्रेड अक्रॉस 5 सेक्टर्स। इसके ऊपर से जो रैंकिंग तय की जाएगी उसे डेल्टा रैंकिंग कहते हैं। तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारी परीक्षा की दृष्टि से। और ये जो इंडिकेटर्स है वो हमें जानने ज़रूरी नहीं है, मगर हमें कुछ ध्यान में रहना चाहिए जो आपको गूगल में और नेट के ऊपर आसानी से अवेलेबल हो सकता है। मुझे लगता है कि यह 49 पैरामीटर्स की चर्चा यहाँ एक जो है फिजूल होगी, क्योंकि ये हमें याद नहीं रखने हैं। प्लस हमें सिर्फ देखना ही है कि विच टाइप ऑफ पैरामीटर्स आर एक्चुअली यूज्ड बाय नीति आयोग इन डेल्टा रैंकिंग। साइलेंट फीचर्स देखें तो देयर आर 115 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस 28 स्टेट। ये आंकड़ा भी हमें याद रखना है, ये हमारे प्रिलिमिनरी के लिए थोड़ा महत्वपूर्ण है। नीति आयोग एंकर्स प्रोग्राम, यस, नीति आयोग इज एक्चुअली, आप कह लीजिए, नोडल एजेंसी फॉर दिस एंटायर प्रोग्राम या फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एंटायर प्रोग्राम। 49 इंडिकेटर्स अक्रॉस 5 थीमेटिक एरियाज जो हमने बात की, और डेल्टा रैंकिंग जो हमने समझा, ठीक है। इसके अलावा जो 115 जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें से 50 डिस्ट्रिक्ट 12 मंत्रालयों के बीच में बांट दिए हैं। 12 अलग अलग मंत्रालयों के बीच में बांट दिए हैं। 35 जो नक्सल प्रभावी जिले हैं उनको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत रखा गया है, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत। और बाकी के जो 30 बचे हैं, ये 30 को नीति आयोग ने अपने पास ही रखा है। तो इस तरह कुछ बाइफर्केशन हुआ है, ये भी थोड़ा ज़रूरी है। प्लस हमें ये भी देखना होगा कि कौन से राज्य में कौन सा स्टेट आया है। प्रीलिमिनरी में ये भी क्वेश्चन हो सकता है, हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट है, मगर आज की कंपटीशन को देखकर जो है हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो हमें ये भी ध्यान में रखना होगा। प्लस हमारे होम स्टेट का तो हमें पता ही होना चाहिए कि हमारे होम स्टेट में पर्टिकुलरली कौन कौन से राज्य जो है वे इसमें शामिल किए गए हैं या इसमें चयनित किए गए हैं। उसके अलावा नीति आयोग जो हमने बात की, जो 2015 में जिसका गठन हुआ था, इसने यह डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है वो 2018 में शुरू किया। और जो पिछड़े जिले हैं उनको पहले पहचाना, फिर उनकी कायाकल्प करने का ये प्रोग्राम है, इसको लॉन्च किया गया। प्लस जो डेल्टा रैंकिंग है इस साल का, इसमें प्रथम नंबर पर सुकमा डिस्ट्रिक्ट है। सुकमा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़। ये एक नक्सल प्रभावी इलाका है, यानी कि लेफ्ट विंग टेररिज्म से प्रभावित ये इलाका है। यह डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 आया इस पूरे डेल्टा रैंकिंग में, इन कॉम्पिटिशन विथ अदर 114 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो ये भी एक सुकमा जो है वो भी एक याद रखने की चीज़ है हमारी एग्जाम की दृष्टि से। प्लस हमें ये भी याद रखना है कि एस्पिरेशनल जो प्रोग्राम है, जो ट्रांसफॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट करता है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम है। ये हमें याद रखना है, ये स्टेट लेवल नहीं है, ये विलेज लेवल भी नहीं है, मगर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल है। इट आइडेंटिफाइज अ डिस्ट्रिक्ट एज इट्स यूनिट। तो ये हमें याद रखना है। तो दिस वाज ऑल फॉर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम विच वाज इनिशिएटेड एंड विच इज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड बाय नीति आयोग। उसके बाद जो हमारी तीसरी स्कीम है जो फरवरी की है, फरवरी 2020 की, वो है पीएम किसान सम्मान निधि। हमें सबको मालूम है कि यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और खासकर एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करती है। पर्टिकुलर सेगमेंट को फायदा करने के लिए यह पूरी की पूरी स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है, और ये पर्टिकुलर सेगमेंट है फार्मर्स का। हमें मालूम है कि हमारे टोटल लैंड होल्डर्स में जो मार्जिनल एंड स्मॉल होल्डिंग फार्मर्स है, उन लोगों की संख्या ज़्यादा है। उन लोगों की संख्या ज़्यादा है, यानी कि उन लोगों के पास ज़मीन कम है। ज़मीन कम है तो उन लोगों की आय भी कम होगी। तो इन लोगों के उत्थान के लिए, इन लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए केंद्र सरकार के द्वारा, यानी कि नरेंद्र मोदी के द्वारा, यह पूरी की पूरी स्कीम जो है वो लागू की गई है। और इसके तहत नकद राशि दी जाएगी प्रत्येक कृषक को जिसके पास अपनी ज़मीन है, ठीक है। इसमें से कुछ एक्सेप्शंस भी रखे हैं, जैसे जो कोई लैंड होल्डर हो, उसे पेंशन आता हो तो उसे नहीं दिया जाएगा ये लाभ। प्लस इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स है, उसको भी ये लाभ नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा जो लार्ज होल्डिंग फार्मर्स है, जिनकी ज़मीन है 10 एकड़ से ज़्यादा है, उन लोगों को भी यहाँ
लाभ जो है वो नहीं मिल सकता। तो ऐसे कुछ अपवाद है, वरना इन अपवादों के अलावा बाकी ये स्कीम जो है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही महत्वाकांक्षी है। प्लस इसकी जो मोडस ऑपरेंडी है वो भी अच्छी है, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जैसे ये डीबीटी का उपयोग करती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, नो इंटरमीडियरीज, कोई बिचौलिया ही नहीं होगा, तो कोई करप्शन की बात नहीं आएगी, कोई आप कह लीजिए डिले की बात नहीं आएगी, एंड बेनिफिशियरी विल बी बेनिफिटेड। देखते हैं, ये इसका फोटोग्राफ है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसके तहत ये पूरी की पूरी स्कीम चल रही है। देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव, टू प्रोवाइड एस्योर्ड इनकम सपोर्ट। टू प्रोवाइड एस्योर्ड इनकम सपोर्ट, हमें मालूम है कि आज हमारे भारत में जो कृषक है उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है, और वे लोगों के ऊपर ऋण सदैव के लिए रहता है। ठीक है, तो इस परिस्थिति से कृषकों को, या यह पूरी कृषकों की कम्युनिटी को उनमें से बाहर लाने के लिए, उनमें से ऊपर लाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री का यह प्रशंसनीय कार्य है, यह प्रशंसनीय योजना है हमारी केंद्र सरकार की। और उसे एस्योर्ड इनकम सपोर्ट दिया जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि कैश, नकद राशि दी जाएगी। और ये प्रोग्राम जो है वो डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022, उसके रिसाइलेंस में यह प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, ताकि कुछ मदद मिले सरकार को उस टारगेट तक पहुंचने के लिए, जो कि 2022 में किसानों की आय जो है वो दुगनी करनी है। ठीक है, डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022। उसके बाद टू सप्लीमेंट फाइनेंशियल नीड, यस, फाइनेंशियल नीड का सप्लीमेंट है, ये भी एक उसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज टू इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर, एंड अनदर ऑब्जेक्टिव इज टू सप्लीमेंट देयर फाइनेंशियल नीड्स, विच मीन्स उन लोगों को जब जो है बीज बोना होता है, तो जो कुछ खर्च लगते हैं, कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम कह सकते हैं, भले ही कम मात्रा में लगते हो इन कॉन्टेक्स्ट टू द लैंड होल्डिंग, मगर आज कृषक की परिस्थिति ऐसी है कि उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए भी पैसा नहीं होता है, और वो मनी लेंडिंग या मनी लेंडर्स की चुंगल में फंस जाता है। तो इसको भी रोकने के लिए ये स्कीम जो है वो मदद रूप साबित हो सकती है, ये इसका दूसरा उद्देश्य हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद देखें तो साइलेंट फीचर्स में इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। देखिए, दो प्रकार की स्कीम्स होती है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है और एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। दोनों के इनिशियल्स एक ही होंगे, मगर इसका जो स्वभाव है उसमें थोड़ी भिन्नता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो होती है वो 100% फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, और जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ एसिस्टेंस आता है, प्लस राज्य सरकार का भी कुछ उसमें सहयोग आता है, वित्तीय सहयोग में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये सेंट्रल सेक्टर है, विच मीन्स 100% फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम सपोर्ट ऑफ ₹6,000 पर ईयर, 6,000 सालाना प्रत्येक कृषक को दिए जाएंगे अपने खाते में नकद, यानी कि कैश। और आज जो यह पूरी की पूरी योजना जो आज सपाटी पे आई है या करंट अफेयर्स में आई है आप कह लीजिए, तो उसका कारण ये है कि गवर्नमेंट ने जो टारगेट बेनिफिशियरीज है उसका जो आंकड़ा है उसको रिवाइज किया है जनवरी 2020 में। इसीलिए हम लोग फरवरी में इसकी बात कर रहे हैं, और वो जो आंकड़ा 14 करोड़ था बेनिफिशियरीज का, उसे कर दिया है 12 करोड़। कुछ कंडीशन से लगाकर कुछ वर्ग को केंद्र सरकार ने बेनिफिशियरीज के लिस्ट से हटा दिया। ठीक है, तो इसीलिए यह पूरी की पूरी स्कीम यहाँ आज हमारे सामने आई थी। और प्रत्येक बेनिफिशियरी को, जैसे हमने देखा कि 6,000 रुपये देने वाले हैं, केंद्र सरकार के द्वारा मिलने वाले हैं, और ये 3 आप कह लीजिए बैलेंस्ड इंस्टॉलमेंट में रहेगी। इट विल बी इन 3 equal installment and it will be paid quarterly। आज के दिन जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हमने देखा कि पिछले ही
सप्ताह में गवर्नमेंट ने इसका जो तीसरा इंस्टॉलमेंट था वो दिया है, विच मीन्स रफली 18,000 करोड़ गवर्नमेंट पेड टू नंबर ऑफ फार्मर्स। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि इट विल बी पेड बाय डीबीटी, तो यहाँ दो बात है, एक तो डिजिटलाइजेशन हुआ और उसके साथ साथ करप्शन और उसके साथ डिले भी कह सकते हैं, जो आमतौर पर हमें सरकारी कामकाजों में दिखता है। करप्शन भी दिखता है, हमें टाइमिंग डिले भी दिखता है, तो इसको खत्म कर दिया जाएगा डीबीटी के द्वारा। कोई बिचौलिया होगा ही नहीं, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और सामने जो बेनिफिशियरी है वो होगा। उसके बाद पीएम किसान मोबाइल ऐप, यस, ऑन द फर्स्ट एनिवर्सरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड पीएम किसान मोबाइल ऐप, जिसके तहत फार्मर को रियल टाइम जानकारी मिलेगी अपने इंस्टॉलमेंट के बारे में, या आप कह लीजिए उसका जो है अकाउंट यहाँ उसको मिलेगा। रियल टाइम इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड विच इज बेनिफिशियल, विच इज एक्चुअली आप कह लीजिए बेनिफिशियरी टू फार्मर। तो ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है। और हमें यहाँ इस ऐप का नाम जो है वो याद रखना है, पीएम किसान मोबाइल ऐप, विच इज डेडिकेटेड टू किसान सम्मान निधि। देखें आगे, तो पीएम गरीब कल्याण योजना ये हमारी मार्च की स्कीम रहेगी और जिसके तहत हम लोग कुछ देखने का प्रयास करेंगे। हमारे सामने एक टेबल ही है अच्छा खासा, जिसको हम लोग थरली देखेंगे और इसमें दिए गए जो आंकड़े हैं वे हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रिलिमिनरी में 100% होंगे और आगे जो परीक्षाएं आ रही है, स्पर्धात्मक परीक्षाएं, चाहे केंद्र सरकार की हो या चाहे विविध राज्य सरकारों की हो, उसमें यह फायदेमंद साबित हो सकता है। हमें मालूम है कि अमिड कोरोना के चलते केंद्र सरकार ने एक रिलीफ पैकेज जारी किया था, जिसका आंकड़ा लगभग था 1.70 लाख करोड़ रुपीस। This particular amount will be distributed in the number of schemes and will be benefited to number of segment, which means multiple segment are going to be benefited. देखेंगे वन बाय वन। सबसे प्रथम स्कीम का पहला कंपोनेंट इंश्योरेंस स्कीम फॉर हेल्थ वर्कर फाइटिंग कोविड, यानी कि जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स है, जिसमें मेडिकल वर्कर्स का समावेशन होता है, उनके लिए एक इंश्योरेंस कवर, और ये 50 लाख का इंश्योरेंस कवर है कि उन लोगों को इन सेवाओं में सेवा करते हुए अगर उन लोगों को कुछ हो गया तो उनके परिवारों को 50 लाख रुपए की राशि जो है वो मिल सकती है। तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है और इट विल कवर अराउंड 22 लाख हेल्थ वर्कर इंडिया वाइड। पूरे भारत में नंबर ऑफ हेल्थ वर्कर्स जो है वो आज सिविल में काम कर रहे हैं, उन लोगों को ये बेनिफिट मिलने वाला है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिविल हॉस्पिटल तक ही सीमित है, ये ध्यान रखना है, मगर प्राइमरी हेल्थ सर्विस सेंटर वाले आशा वर्कर्स जो होते हैं वे, प्लस जो प्राइवेट लोगों की जो सेवाएं ली जा रही है सरकार के द्वारा सिविल हॉस्पिटल्स में, तो उन लोगों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, उन लोगों को भी बेनिफिशियरी के तौर पर देखा जाएगा। 50 लाख इंश्योरेंस कवर इज प्रोवाइडेड फॉर 90 डेज। 50 लाख इंश्योरेंस कवर 3 महीने तक का यह स्कीम है, मगर इट इज़ बाउंड टू इंक्रीज, ये जो है एक्सटेंड हो सकती है। प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर रिक्वेस्टेड बाय हॉस्पिटल रिलेटेड टू गवर्नमेंट, ये भी हमने जिक्र किया कि प्राइवेट जो वर्कर्स हैं, जिन लोगों को गवर्नमेंट ने बुलाया है सेवा देने के लिए, प्राइवेट हेल्थ वर्कर्स, उन लोगों को भी यहाँ शामिल किया जाएगा। द बेनिफिट विल ओवर एंड अबाउ एनी अदर इंश्योरेंस कवर बीइंग अवेलेबल ऑफ बाय द बेनिफिशियरी। कोई भी बेनिफिशियरी हो, अगर उसका कोई हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है तो उसके ऊपर उसको खत्म कर देगा और उसके ऊपर ये जो इंश्योरेंस है वो अप्लाई हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अच्छी स्कीम है। सेकंड कंपोनेंट देखा ये पर्टिकुलर स्कीम का, तो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, पुअर हाउस होल्ड्स गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम पीडीएस, और उसका जो आंकड़ा है वो है 80 करोड़। भारत के कुल 80 करोड़ लोगों को ये अन्न योजना, गरीब अन्न योजना का बेनिफिट मिलने वाला है अमिड कोरोना। और इसके तहत 5 kg of wheat or rice per person per month over and above present entitlement
अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो आज का प्रेजेंट एंटाइटलमेंट है धान का, उसके ऊपर 5 किलो प्लस मिलेगा। तो आज 5 किलो ही है, तो टोटल दे विल बी एंटाइटल्ड 10 kg ऑफ व्हीट और राइस। उसके अलावा ऑल्सो 1 kg ऑफ पल्सेस पर फैमिली, जो 1 kg आज दिन तक नॉर्मली जो पल्सेस मिलते थे, अब वो 1 + 1 2 kg हो जाएंगे। 2 kg पल्सेस, और ये बात है पर पर्सन पर फैमिली। उसके आगे अगर देखें तो पीएम किसान, जिसमें फार्मर्स आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड, और 8.7 करोड़ जो आंकड़ा है जिन फार्मरों को बेनिफिट होने वाला है, ट्रांसफर ऑफ ₹2000 इन अप्रैल। तो ये भी एक कंपोनेंट है आउट ऑफ 1.70 लाख करोड़। उसके बाद कैश ट्रांसफर अंडर पीएम गरीब कल्याण योजना, कैश ट्रांसफर नकद, ये आप कह लीजिए धनराशि। जिसमें कई सारे बेनिफिशियरीज है, जिसको 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। सर्वप्रथम मनरेगा वर्कर्स, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, उसके तहत जो काम कर रहे हैं, उसके तहत जिन लोगों को वेजेस एंटाइटल है, दे विल बी कवर्ड हियर। उसके बाद वुमेन बेनिफिशियरीज अंडर उज्ज्वला योजना, प्लस वुमेन जनधन अकाउंट होल्डर्स, वल्नरेबल सीनियर सिटीजन्स, विडोज एंड दिव्यांग्स, दिव्यांग यानी कि हैंडीकैप्स, और ऑर्गेनाइजेशन विथ अप टू 100 एम्प्लॉइज आउट ऑफ विच 90% आर हैविंग वेजेस लेस देन 15,000 पर मंथ। ऐसे कोई संगठन जहां 100 से अधिक कर्मचारी हो और उन 100 में से 90% से ऊपर के जो कर्मचारी है, उन लोगों की आप कह लीजिए जो मंथली इनकम है वो 15,000 से कम हो, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के वर्कर को भी यहाँ शामिल किया जाएगा। मनरेगा वर्कर्स टोटल हमारे भारत में 14 करोड़ फैमिली है, 13.62 करोड़ फैमिली विच आर एंटाइटल्ड फॉर दिस पर्टिकुलर बेनिफिट। उसके बाद उज्ज्वला योजना के साथ 8.3 करोड़ कुटुंब जुड़े हुए हैं उज्ज्वला स्कीम के साथ, वे भी बेनिफिट पाएंगे। जनधन योजना अकाउंट होल्डर 20.40 करोड़ वुमेन है। देयर आर टोटल 20.40 करोड़ वुमेन हु आर होल्डिंग जनधन अकाउंट, उन लोगों को बेनिफिट दिया जाएगा। वल्नरेबल सेक्शन जो है हमारे, जिसमें सीनियर सिटीजन्स है, दिव्यांग्स है और अदर आप कह लीजिए विडोज है, तो उन लोगों को भी दिया जाएगा। वे कुल मिलाकर 3 करोड़ है। और आखिरी में जो ऑर्गेनाइजेशंस है जिसका जिक्र हमने किया, यहाँ एक कंडीशन दी गई है, तो उसके तहत कुल ऐसे 80 लाख कर्मचारी है। इन सबको केंद्र सरकार के द्वारा ये लाभ दिए जाएंगे, नकद राशि दी जाएगी या किसी और तरीके से उन लोगों को लाभ दिया जाएगा। देखते हैं। मनरेगा वर्कर विल बी एंटाइटल्ड वेज हाइक टू 202 फ्रॉम 182, तो 202 दिन का काम अब इन लोगों को मिलेगा। उसके अलावा ईच वर्कर टू गेट 2,000 रुपीज एडिशनल, प्रत्येक कर्मचारी को, प्रत्येक कामदार को 2,000 रुपये अधिक से दिए जाएंगे, क्योंकि यह कोरोना या सरकार भी समझ रही है कि इकोनॉमिक लॉकडाउन से कई क्षेत्रों में नुकसान हुआ है, और ऐसा जो क्षेत्र है यहाँ तो बहुत ही नुकसान होता है, क्योंकि उन लोगों के पास जो है पूंजी नहीं होती और काम धंधा भी फट से बंद हो गया, तो इन लोगों की परिस्थिति जो है वो और ज़्यादा गंभीर हो गई थी। उसके बाद उज्ज्वला योजना में फ्री गैस सिलेंडर्स फ्रॉम अप्रैल टू जून दिए जाएंगे। वुमेन जनधन अकाउंट में 500 रुपये दिए जाएंगे 3 या 4 महीनों तक। वल्नरेबल सेक्शंस को एक्स ग्रेशिया 1,000 रुपीज ड्यूरिंग अप्रैल एंड जून दिया जाएगा। ठीक है, दे विल बी एंटाइटल्ड टू गेट मोर 1,000 रुपीज। और जो 80 लाख एम्प्लॉइज है ऑर्गेनाइजेशंस के, उन लोगों को गवर्नमेंट टू पे 24% ऑफ देयर मंथली वेजेस इन देयर पीएफ अकाउंट फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। 24% यानी कि 25%, चौथा भाग गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा उनकी तनख्वाह का। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है, और इन सब समूहों को ये बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी यहाँ एक कंपोनेंट के तहत उन लोगों को भी यह लाभ दिया जाएगा, जिसमें कुल 63 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है। ठीक है, तो इन लोगों को लाभ देने की जो है बात यहाँ की गई है। दे विल गेट कोलेटरल फ्री लोन
और उसकी लिमिट जो है वो बढ़ा दी गई है। पहले 10 लाख थी, अब वो कर दी गई है 20। उसके बाद अदर कंपोनेंट्स ऑफ गरीब कल्याण पैकेज देखे अगर, तो वर्कर्स रजिस्टर अंडर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जिसमें टोटल 4.8 करोड़ वर्कर्स है, यानी कि 5 करोड़ उन लोगों को लाभ दिया जाएगा। क्या लाभ दिया जाएगा? ईपीएफ रेगुलेशंस विल बी अमेंडेड टू इंक्लूड पेंडेमिक एज अ रीजन टू अलाउ नॉन रिफंडेबल विड्रॉल अप टू 75% ऑफ 3 months wages, whichever is lower. तो they are entitled that they can withdraw, या आप कह लीजिए नॉन रिफंडेबल विड्रॉ जो है उन लोगों का एंटाइटल हो चुका है, तो ये भी एक इन लोगों के लिए अच्छी बात है। प्लस बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जिस क्षेत्र के साथ कुल 4 करोड़ जो नागरिक है वे इसके साथ जुड़े हुए हैं, इन लोगों को भी लाभ देने की जो है योजना यहाँ है। उसके तहत all states UTs were advised to transfer fund in the account of construction worker through DBT mode from the cess fund collected and constituted by the building and other construction worker welfare boards। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने क्या किया? राज्यों को बोला कि भाई जो आप सेस कलेक्ट कर रहे हैं यह पर्टिकुलर सेक्टर के पास से, यानी कि BOCW, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हम लोग कह सकते हैं, अदर कंस्ट्रक्शन वर्क कह सकते हैं, तो इसका खजाने में जो सेस कलेक्ट हुआ है उन सेस में से आप इन वर्कर्स को कुछ आर्थिक सहाय करें ताकि इन लोगों की जो परिस्थिति है वो थोड़ी सुधर सके। उसके बाद अगर देखें तो तीसरा जो है वो है दोज कवर्ड अंडर प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। District Mineral Fund will be utilized for supplementing and augmenting facility, ठीक है, for screening as well as medical testing for treating patients affected by the COVID। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो प्रताड़ित वर्ग है, जो प्रताड़ित समूह है आर्थिक दृष्टि से, उन लोगों के उत्थान के लिए, उन लोगों के फायदे के लिए हमारी जो केंद्र सरकार है, नरेंद्र मोदी लेड एनडीए की, ये केंद्र सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छा कदम यहाँ लाया गया है। और ये सब जो कंपोनेंट्स है उस सब कंपोनेंट में एक बात की यहाँ कमी नजर आ रही है, डीबीटी जो है वो सब में होना चाहिए। ठीक है, आज मात्र और मात्र किसान सम्मान निधि में या अन्य 2-4 स्कीमों में ही डीबीटी हमें देखने को मिलता है, मगर ये डीबीटी जो है वो सारी स्कीमों में होना चाहिए, तभी फुलेस्ट बेनिफिट जो है वो बेनिफिशियरी के पास पहुंच सकेगा, लाभार्थी के पास पहुंच सकेगा। तो ये पूरी बात हुई गरीब कल्याण योजना की, जो एक पूरी अम्ब्रेला है जिसके अंदर कई सारे कंपोनेंट्स है और उन कंपोनेंटों में कई सारे ऐसे टारगेटेड समूहों को सहायता देने की बात यहाँ हुई है, जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगर पीएम केयर्स की बात करें तो हमें मालूम है कि यह एक आपातकालीन फंड है जिसको केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया, और ये काफी विवाद में भी रहा है, क्योंकि ये केग को भी, केग के ऑडिट के लिए भी जो है ये एग्जेम्प्टेड है, ये इम्यून है, इट इज इम्यून फ्रॉम द ऑडिट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, प्लस इट इज इम्यून फ्रॉम राइट टू इंफॉर्मेशन। आईटी एक्ट के तहत भी इसको प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। इट इज ओनली एंड ओनली आंसरेबल टू पीएमओ, ओनली answerable to PMO। उसके अलावा ये पीएम केयर्स किसी को भी जवाब देने के लिए बंधा नहीं है, तो ये भी एक विवाद का कारण है। इसके संदर्भ में कई सारा विवाद हुआ भी है, कोर्ट ने भी अपना स्टैंड दिया है, मगर इन बातों में हमें अभी नहीं उतरना है, ये हमारा चर्चा का विषय नहीं है। आज हमें देखना है कि पीएम केयर्स काम कैसे कर रहा है, टेक्निकली ये काम किस तरह से कर रहा है। देखिए, यहाँ हमें कोई फोटोग्राफ नहीं मिला और इसीलिए हमने जो विजन आईएएस है उसके फोटोग्राफ कर्टसी यहाँ ली है, ताकि हमारी समझ जो है वो थोड़ी अच्छी हो। देखेंगे, सबसे प्रथम फॉर्मेशन की बात करेंगे तो 2 यहाँ फंड है जिसके अंदर कंपैरिजन की गई है। एक पहला फंड था जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, और दूसरा आज नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ है। जवाहरलाल नेहरू का जो फंड था वो चल ही रहा था, मगर यहाँ कोरोना के चलते केंद्र सरकार ने एक नया फंड
प्रस्थापित करने की बात की है। ठीक है, तो इसी के चलते ये भी एक जो है अपने आप में एक विवाद है, मगर यहाँ हमें विवादों में नहीं पड़ना है, हमें सिर्फ समझना है, दोनों का डिफरेंस देखना है। देखेंगे, पहला है PMNRF विच मीन्स प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड। वैसे तो ये पुराना है, इसका कोई नाम जरूरी नहीं है, मगर हमें नाम याद रखना है तो वो है PM केयर्स का। इसका फुल फॉर्म जो है वो हॉट टॉपिक बन सकता है प्रिलिमिनरी एग्जामों में जो अगले दिनों में आने वाली है। तो PM केयर्स का नाम हमें रट के जाना है, वो हमें याद रखना है, मगर इसका कोई नाम जरूरी नहीं है, मैंने ऐसे ही यहाँ लिखा है। देखेंगे, इट वॉज फॉर्म्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इन जनवरी 1948 एंड इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है क्रिएटेड टू असिस्ट डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान। यस, जो डिस्प्लेस्ड हो चुके थे, जो अपनी ज़मीन जायदाद वहाँ रख कर जो है पहने कपड़ों में यहाँ आ गए थे, उन लोगों को राहत देने के लिए यह पूरा का पूरा फंड बनाया गया था। नाउ प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू पर्सन अफेक्टेड बाय कैलामिटीज सच एज फ्लड, अर्थक्वेक एंड टू विक्टिम्स ऑफ द रायट एंड एक्सीडेंट्स। यस, जब प्रस्थापित हुआ तब इसका उद्देश्य कुछ जुदा था, अलग था, मगर धीरे धीरे इसका उद्देश्य जो है वो उसमें कुछ फेरफार आया है और आज ये कुदरती आपदा से जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी सहायता के लिए काम कर रहा है। Assistance also rendered to partially defray expense for medical treatment like heart surgeries, kidney transplantation, acid attack, etc. The PMNRF also has a list of empaneled hospitals that include all central and state government hospitals and a list of private hospitals that it offers support to. सबका जो है यहाँ समावेशन किया हुआ है यह पूरी सूची में। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म देखें तो रिकॉग्नाइजेज अ ट्रस्ट अंडर इनकम टैक्स एक्ट विथ प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरमैन एंड इट इज असिस्टेड बाय द ऑफिसर्स स्टाफ ऑन ऑनररी बेसिस। यस, तो ये हमें याद रखना है कि इट्स अ टाइप ऑफ ट्रस्ट, एक प्रकार का ट्रस्ट है और इनकम टैक्स के साथ इसका पंजीकरण हुआ, इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसके बाद अगर कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो इट एक्सेप्ट्स ओनली वॉलंटरी डोनेशंस बाय इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। वॉलंटरी डोनेशन, स्वैच्छिक जो दान है वही लेता है, व्यक्तिगत और संस्था के द्वारा। contributions flowing out of budgetary sources of government or from the balance sheet of the public sector undertakings are not accepted. Yes, ये बात है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और गवर्नमेंट बजटिंग का जो फंड है वो इसको अलाउ नहीं करता, वो इसको नहीं लेता, एक्सेप्ट नहीं करता। एक्सेप्शंस अंडर FCRA has also received foreign contribution as a public trust since 2011। कई बार इसको फॉरेन डोनेशन भी दिया हुआ है, तो ये इसने एक्सेप्ट किया है। डिस्बर्समेंट ऑफ फंड देखें तो सब्जेक्ट टू डिस्क्रिशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यस, प्राइम मिनिस्टर के विवेक के ऊपर अधीन है कि ये फंड जो है वो खर्च कैसे होगा। डोनेशन टू द फंड क्वालिफाई फॉर 80G बेनिफिट्स फॉर 100% एग्जम्पशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट। अगर आप इस फंड में डोनेट करें तो ये आपकी जो रकम है वो एग्जम्प्ट होगी, इसके ऊपर आपको कोई टैक्स जो है वो नहीं देना पड़ेगा। ऑल्सो क्वालिफाई टू बी काउंटेड एज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर अंडर कंपनीज एक्ट 2013। और अगर किसी संस्था ने, किसी कंपनी ने इस फंड में स्वैच्छिक दान किया तो ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो है संदर्भ में इसको गिना जाएगा, तो ये कंपनी के लिए भी अच्छी बात हो सकती है। और इसका जो ऑडिट है, इट इज ऑडिटेड बाय एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर आउटसाइड द गवर्नमेंट। एट प्रेजेंट सार्क एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर द ऑडिटर्स। तो आज के समय ये जो पेडी है या फर्म है, ये फर्म इसका एक्सटर्नल ऑडिट करती है और इट इज ओनली एंटाइटल्ड फॉर एक्सटर्नल ऑडिट। और अगर सामने अगर PM केयर्स को हमें कंपेयर करना है तो सेम फॉर्मेट में हम लोग देख सकते हैं, ताकि हमारी समझ जो है वो थोड़ी और बेहतर हो। नाम तो हमें मालूम ही है PM केयर्स, और जैसे मैंने आपको बताया कि इसका नाम थोड़ा महत्वपूर्ण है, तो प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन्स असिस्टेंस रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। ये नाम आज हमारे लिए थोड़ा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, ये हमें रट के जाना है। इट वॉज फॉर्म्ड इन 2020 अमिड COVID-19 ब्रेकआउट या आउटब्रेक। कोविड की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, कोविड की सिचुएशन को जो है टैकल करने के लिए यह फंड का निर्माण आपातकालीन धोरण से केंद्र सरकार के द्वारा हुआ था, यानी कि इन अ वेरी
जो है इमरजेंसी। अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो अंडरटेकिंग एंड सपोर्टिंग रिलीफ एंड असिस्टेंस ऑफ एनी काइंड रिलेटिंग टू पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी और एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी कैलामिटी डिस्ट्रेस आइदर मैन मेड और नेचुरल। तो यहाँ भी सेम है, मगर इसमें जो इमरजेंसी पब्लिक हेल्थ का जो सिनेरियो है ये इसमें ऐड किया गया है। हालांकि प्रायर स्कीम में ये मौजूद नहीं था, जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फॉर्म हुई थी। उसके बाद क्रिएशन ऑफ और अपग्रेडेशन ऑफ हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल फैसिलिटी। क्रिएशन ऑफ और अपग्रेडेशन, जो हमें मालूम है कि आज कोरोना ने पब्लिक हेल्थ में जो लूपहोल्स थे उसको सार्वजनिक कर दिया है, उसको हमारे सामने ला के रख दिया है। तो ऐसी सिचुएशंस के साथ निपटने के लिए भी ये फंड जो है वो काम आता है। प्लस विल ऑल्सो रेंडर फाइनेंशियल असिस्टेंस, प्रोवाइड ग्रांट ऑफ पेमेंट्स ऑफ मनी और टेक एनी अदर सच स्टेप डीम्ड नेसेसरी बाय द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी टू द अफेक्टेड पॉपुलेशन। और किसी और भी प्रकार का जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो यहाँ से प्रोवाइड हो सकता है जब ट्रस्टी को ऐसा लगे कि यहाँ जो है हमें इसमें से फंड देना जो है रीजनेबल है, तब दे कैन बी गिवन। उसके बाद देखें एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म, तो प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ दिस पीएम केयर्स फंड। प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो इसका जो है अपने आप ही बाय डिफॉल्ट चेयरमैन बन जाएगा। अलोंग विथ इट इंक्लूड्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सब सेंट्रल गवर्नमेंट के, और एक्स ऑफिशियो ट्रस्टीज ऑफ द फंड। उसके बाद द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, प्राइम मिनिस्टर, shall have the power to nominate 3 trustees of the board who shall eminent person in the field of research, health, science, social worker, law, public administration and philanthropy. 3 persons are to be nominated by the chairman of this trust, which means प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 3 लोगों की नियुक्ति यहाँ की जाएगी, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, संशोधन के क्षेत्र में, या आप कह लीजिए फिलांथ्रोफी के, परोपकार के क्षेत्र में जो है अच्छे खासे हो, उन लोगों को यहाँ ट्रस्टी के रूप में शामिल किया जाएगा, इन लोगों को रखा जाएगा। उसके बाद अगर कंट्रीब्यूशन टू फंड देखें तो इट कंसिस्ट entirely of voluntary contribution from individual organization and does not get any budgetary support. Yes, same like prior fund जो हमने देखा कि वहाँ भी voluntary donation ही जो है लेने वाले हैं, तो यहाँ कोई अन्य budgetary allocation की कोई जगह नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। There will be no budgetary allocation. No budgetary. And exception under FCRA, so it can accept a donation and contribution from individual and organizations based in foreign country. जो अगर इंडियन डायस्पोरा जो भारत के बाहर रहता है, अगर उन लोगों को कोई स्वैच्छिक यहाँ दान करना है इस फंड में, तो वे कर सकते हैं। इट इज एग्जेम्प्टेड अंडर FCRA. उसके बाद डिस्पर्समेंट ऑफ फंड देखें तो इट इज सब्जेक्टेड टू द क्राइटेरियन एंड रूल्स लेड डाउन बाय द ट्रस्टीज, यानी कि PMO, सीधी सी बात है। उसके बाद क्वालिफाई फॉर 80G बेनिफिट्स फॉर 100% एग्जेम्पशन अंडर IT एक्ट ऑफ 1961. उसके अलावा विल ऑल्सो क्वालिफाई टू बी काउंटेड एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर अंडर कंपनीज एक्ट 2013. तो ये भी एक अपने आप में जो है सेम सी बात है, जो प्रायर फंड था उसके साथ जो है रिलेट करती है, साम्य रखती है। ऑडिट की बात करें तो विल बी ऑडिटेड बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स हु विल बी अपॉइंटेड बाय द ट्रस्टी, यानी कि PMO. हाल इसका नाम जो है वो सार्वजनिक नहीं किया गया, मगर अगले समय में हमें मालूम पड़ जाएगा कि हु इज गोइंग टू ऑडिट द एंटायर PM केयर्स फंड. तो ये पूरा था PM केयर्स का फंड, जो आज के जो है इस कोरोना के समय में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको अनुरोध करूंगा कि यह PM केयर्स आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाए, प्लस इसके जो अन्य कोई प्रावधान है जो कोई यहाँ छूटे हो, ठीक है, तो उनको भी आप पढ़ लीजिए ताकि आपकी समझ जो है वो बेहतर हो। और उसके साथ साथ ये कंट्रोवर्शियल भी है, जैसे हमने शुरुआत में बात की, तो 100% इसके ऊपर के प्रश्नों का सामना जो है वो आपको किसी भी क्षण करना पड़ सकता है। नेक्स्ट हमारी जो स्कीम है वो है इंटेंसिफिकेशन ऑफ रिसर्च इन हाई प्रायोरिटी एरिया। यहाँ हमें फोटो दृश्य मन है जिसके तहत साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, विच मीन्स SERB, जो DST की एक प्रीमियर एजेंसी है, प्रीमियर एजेंसी ऑफ
ऑफ DST यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो यह पूरी की पूरी योजना की नोडल एजेंसी रहेगी, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी रहेगी, और इसके तहत ही, इसकी देखरेख में ही यह पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा। इस पूरी योजना के तहत जैसे हमने यहाँ नाम देखा है वैसे ही रिसर्च जो है करने की बात है, और इस रिसर्च में आज के इस कोरोना के माहौल में जो वैक्सीन रिलेटेड रिसर्च है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, और उसी के लिए यह जो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है वो लगा हुआ है। तो ऐसे एरियाज को पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा, और उसमें जो हेल्थ रिलेटेड, उसके बाद आप कह लीजिए वैक्सीन रिलेटेड जो कोई बातें हैं इसको प्रायोरिटी दी जाएगी, और उसके अनुसंदर्भ में जो संशोधन है वो भी किए जाएंगे, वो भी जो है करने वाले हैं। अगर ऑब्जेक्टिव्स देखें तो टू सपोर्ट प्रपोजल इन हाई प्रायोरिटी एरिया, हाई प्रायोरिटी एरिया में जो है पहले तो आइडेंटिफाई करना है, फिर वहाँ जो है संशोधन का कार्य शुरू करना है, जिसमें मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच लाया जाएगा, और इसी के तहत काम जो है वो किया जाएगा। देखेंगे इसके साइलेंट फीचर्स। सर्ब आइडेंटिफाइज द प्रायोरिटी एरिया एंड मेक्स अ नेशनल कॉल। सबके द्वारा ऐसा कुछ क्षेत्र को जो है पहचान लिया गया है, और एक राष्ट्रजोग पुकार जो है वो लगाई गई है, और इसके तहत जो प्रपोजल्स है वो भी मंगवाए गए हैं पूरे राज्य, पूरे राष्ट्र में से। ठीक है, तो सीकिंग proposals. The duration of the project is normally for 5 years. 5 वर्षों का यह प्रोजेक्ट होगा, और the project is set up under established research groups which will be headed by PI, यानी कि प्रिंसिपल इंचार्ज, जिसको टेक्निकली इन्वेस्टिगेटर कहा जाता है। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर पूरा चैन होगा, इस प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के नीचे भी 2 को पीआई रहेंगे, और पूरा ऐसा ग्रुप बनेगा। तो प्रत्येक ग्रुप में एक पीआई होगा जो यह पूरे रिसर्च ग्रुप को हेड करेगा, उसको लीड करेगा। प्लस इसके साथ साथ जो एमर्जिंग सेक्शंस है या कह लीजिए सेगमेंट्स है, उसमें 3D प्रिंटिंग, फिर नैनो स्केल मैटर्स, और नैनो स्केल मैटर्स के साथ साथ जो ड्रग डिस्कवरीज है, इत्यादि क्षेत्रों पर भार दिया जाएगा, और इत्यादि क्षेत्रों के साथ संशोधन जो है वो भी किया जाएगा। फिर उसके बाद जो हम बात करें तो ये पूरी की पूरी यह रिसर्च को इंटेंसिफाई करने के लिए केंद्र सरकार की योजना थी, जिसके तहत हमने देखा कि जो सर्ब है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल रिसर्च विंग है, वो इसके लिए नोडल एजेंसी के तहत की तरह काम करेगा, और जो अनटच्ड अनएक्सप्लोर्ड जो सेक्टर्स है, सेगमेंट्स है, उनमें रिसर्च करने का प्रयास करेगा। जैसे 3D प्रिंटिंग हमने देखा, ये एक अनएक्सप्लोर्ड है, नया है, एडवांस सेक्टर है, तो उसमें जो है अपना संशोधन जो है वो मजबूत करेगा। उसके बाद नई योजना जो हमारे सामने है वो है इनाम प्लेटफॉर्म, कि बहुत ही अब कह लीजिए प्रख्यात योजना है। प्रख्यात इसलिए है क्योंकि ये नए कानूनों के साथ जुड़ी हुई है, जो नए कृषि कानून है, जो नए कृषि सुधार है, जो आज हमारे बीच चर्चा का विषय है, गर्म चर्चा है, तो उसके साथ ये संबंधी है। और जैसे इसका नाम में ही इसका अर्थ छुपा है, इनाम, विच मीन्स नेशनल इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक नेचुरल एग्रीकल्चरल मार्केट, विच मीन्स इट विल बिकम अ डिजिटल। जो आज हम लोग फिजिकल ट्रेडिंग देख रहे हैं एग्री प्रोड्यूस का, वो अब फिजिकल नहीं रहेगा, मगर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत ट्रेडिंग होने वाला है। जो आज तक एपीएमसी जो काम देता आया है, वो काम अब इनाम करेगा। हालांकि एपीएमसी को भी इनाम से जोड़ा गया है, मगर सरकार का उद्देश्य जो है वो है बिचौलियों को खत्म करना, इंटरमीडियरीज को खत्म करना। तो इसी में ये सरकार का बहुत ही अच्छा साधन साबित हो सकता है। देखेंगे ऑब्जेक्टिव, इंटीग्रेट मार्केट अक्रॉस स्टेट्स एंड कंट्री।
यस, इंटीग्रेट मार्केट अक्रॉस स्टेट्स एंड कंट्रीज, जो पूरे भारत में जो ऐसे एपीएमसीज है या आप कह लीजिए छोटी मंडियां हैं, उन मंडियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। स्ट्रीमलाइन मार्केटिंग प्रोसीजर टू प्रमोट एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द मार्केट। मार्केटिंग प्रोसीजर जैसे मैंने आपको बताया कि इट विल बी ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम फिजिकल टू डिजिटल मार्केट। तो बट ऑब्वियस है कि ये कुछ इंटरमीडियरीज को दूर कर देगा, तो जो प्रोसीजर है, ट्रेडिंग प्रोसीजर, उसमें फायदा होगा, उसमें इजाफा होने वाला है। उसके बाद प्रमोट बेटर मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी। यस, ये ऐसा भी क्लेम कर रहा है कि मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज में भी सुधार आ सकते हैं, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी हो सकती है, और इसी के तहत ये इनाम जो है वो लागू किया जाएगा। प्लस आगे उसमें देखें तो प्रमोट स्टेबल प्राइस एंड क्वालिटी प्रोड्यूस, प्राइस स्टेबिलिटी की भी बात यहाँ हो रही है, और उसके साथ साथ जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, क्वालिटी प्रोड्यूस, उसकी भी यहाँ बात हो रही है। ठीक है, आगे देखें साइलेंट फीचर्स में, तो इट वाज लॉन्च्ड इन 2015 अक्रॉस इंडिया। 2015 से केंद्र सरकार इस क्षेत्र में काम कर रही है, इस दिशा में। सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड रिक्वायर्ड रिसोर्स टू द स्टेट टू एस्टैब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी आएंगे, इसमें सॉफ्टवेयर्स भी आएंगे, जो यह पूरे डेटाज को बाइफरकेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, ये भी सेंटर के द्वारा प्राप्त होंगे प्रत्येक राज्य को। फंड एलोकेशन इट विल बी फ्रॉम AITF, which stands for एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो ये हमें ध्यान में रखना होगा, ये महत्वपूर्ण बात है। यहाँ से फंड आएगा। न्यू मॉड्यूल्स आर लॉन्च्ड इन इनाम। यस, यह न्यूज में ही इसीलिए आया क्योंकि 3 नए मॉड्यूल्स को लॉन्च किया गया, जिसके नाम कुछ इस तरह है। प्रथम, नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट्स। दूसरा आएगा FPO ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेडिंग मॉड्यूल, और आखिरी में आएगा लॉजिस्टिक मॉड्यूल। ये तीनों के तीनों ऐसे काम करेंगे कि जो कृषक है उसकी जो लागत है वो कम से कम हो। कृषक की लागत कम से कम होगी इस तीनों मॉड्यूल से। इस तीनों मॉड्यूल को केंद्र सरकार के द्वारा जो सार्वजनिक किया गया है, लागू भी किया गया है, इसीलिए ये आज चर्चा का विषय रहा है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये मार्च की बात हम लोग कर रहे हैं, मार्च। ठीक है, तो फरवरी में ये कुछ फेरफार जो है वे सरकार के द्वारा किए गए थे। तो दिस वाज ई-नाम। आगे देखें अटल पेंशन योजना, तो ये भी एक महत्वपूर्ण योजना है जो मास पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है, और इसी के लिए इसकी जो महत्वता है वो थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि इट इज अफेक्टिंग ए मास पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव और साइलेंट फीचर्स। ये इसका लोगो है, जैसे यहाँ आपको दृश्यमान है। देखिए, टू प्रोवाइड ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी टू वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि बिन संगठित क्षेत्र। और हमें मालूम है कि भारत में बिन संगठित क्षेत्र जो है उसका फैलाव ज्यादा है इन कंपैरिजन टू संगठित क्षेत्र या इन कंपैरिजन टू ऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, तो ये मास पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगा, मास पॉपुलेशन को बेनिफिट करेगा, जो इसकी महत्वता को बढ़ाता है। एड्रेसिंग चैलेंजेस ऑफ एजिंग पॉपुलेशन। यस, जो भारत में जो दर से आज एजिंग पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन में बढ़ावा हो रहा है, तो यह इस डिपेंडेंट पॉपुलेशन को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए सक्षम है, ताकि वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन का बोझ जो है वो आज वर्किंग ग्रुप के ऊपर ना पड़े। तो ये भी एक अच्छी बात है।
उसके बाद साइलेंट फीचर्स में अगर एलिजिबिलिटी देखी जाए इस अटल पेंशन योजना की, तो एनीवन कैन बी एलिजिबल, एनीवन कैन बी एलिजिबल फ्रॉम 18 to 40 ईयर्स, कोई भी इसका लाभ ले सकता है। प्लस गारंटीड पेंशन भी देना जो है इट इज एंटाइटल्ड, और जो इंस्टॉलमेंट की जो रकम है वो 1000 से 5000 के बीच में है, बिटवीन 1000 to 5000 रुपीज इंस्टॉलमेंट हमें देने हैं। उसी प्रोपोर्शन में, उसी रेशियो में हमें पेंशन जो है वो एंटाइटल्ड होने वाला है। उसके बाद गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, तो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन इसमें 50% रहने वाला है, 50, और जो अदर 50% है वो बेनिफिशियरी को देना पड़ेगा, ऐसा कुछ प्रावधान इसमें दिया गया है। और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किया जाएगा पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा। इट इज अ नोडल एजेंसी, इट इज अ नोडल एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम, पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, इट विल बी अ नोडल। तो ये बात रही अटल पेंशन योजना की। देखिए आगे की हमारे पास जो स्कीम है वो है पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। वो भी एक जो है एक सोशल स्कीम ही है, और पर्टिकुलर सेक्शन को टारगेट करेगी रोजगारी के सृजन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के जनरेशन के लिए। यहाँ इसका लोगो है, और एमएसएमई जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है उसको टारगेट करने वाली है। प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP देखेंगे ऑब्जेक्टिव टू जनरेट कंटिन्यूअस एंड सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट, कंटिन्यूअस एंड सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट, निरंतर रोजगारी का सर्जन उत्सर्जन जो है वो होना चाहिए। इसी दृष्टि के साथ, इसी विजन के साथ ये स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट की गई है, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज सेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिसन एंड रूरल यूथ, ट्रेडिशनल आर्टिसन एंड रूरल यूथ, जिसमें जो है रूरल वर्कर्स का समावेशन होता है। टू फैसिलिटेट पार्टिसिपेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा इन लोगों को क्रेडिट लैंडिंग भी दिया जाएगा, क्रेडिट लैंडिंग भी इन लोगों के द्वारा दिया जाएगा। साइलेंट फीचर्स देखें तो स्कीम इंप्लीमेंटेशन बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, इट विल बी द नोडल एजेंसी, सब्सिडी विल बी प्रोवाइडेड, और सरकार के द्वारा सब्सिडी भी यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो 18+ ईयर्स रहेगी, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10 लाख तक की लोन दी जाएगी, और वहीं जो सर्विस सेक्टर है या आप कह लीजिए ट्रेडिंग है उसमें 5 लाख तक की लोन देने की बात यहाँ की गई है, देने का जो है यहाँ विजन रखा गया है। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। आगे देखें तो प्रधानमंत्री स्वनिधि नामक एक योजना है जो भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट कर बनाई गई है उन लोगों को लाभ देने के लिए, जिसमें हमें एक पिक्चर दृश्यमान है एक हॉकर का, एक घूमता हुआ जो बेचने का काम करता है एक जगह से दूसरी जगह का, उसका कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता। इन लोगों को टारगेट कर ये स्कीम बनाई गई है। प्लस ये स्कीम जो है वो पूरी की पूरी कोरोना से ट्रिगर्ड है, कोरोना से प्रेरित है, क्योंकि इन लोगों की परिस्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी थी अमिड लॉकडाउन, अमिड इकोनॉमिक लॉकडाउन। तो इसी की वजह से इन लोगों की परिस्थिति में पुनरुत्थान करने के लिए इन लोगों की परिस्थिति का ये स्कीम लॉन्च की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स, इट इज अ स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी स्कीम फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी स्कीम यानी कि इसका आंकड़ा कम होगा मगर इन लोगों को अपना व्यवसाय चलाने के लिए पर्याप्त रकम जो है वो दी जाएगी। द स्कीम विल असिस्ट स्मॉल वेंडर्स अमिड पैंडेमिक। स्मॉल वेंडर जिसमें मैंने आपको बताया कि हॉकर्स का भी समावेशन होता है, जो ठेले वाले होते हैं उन लोगों का भी समावेशन होता है, जो जिन लोगों का स्थायी कोई व्यवसाय करने का स्थान नहीं होता
फुटपाथ पर या गली मोहल्ले में घूमते रहते हैं उन लोगों को टारगेट करने की यह स्कीम है। प्लस इट विल ऑल्सो टारगेट माइक्रो सर्विस प्रोवाइडर्स विच मीन्स बार्बर्स, कोबलर्स या आप कह लीजिए ब्लैक स्मिथ, ठीक है। तो इन लोगों को भी ये स्कीम का लाभ जो है वो मिलने वाला है। ओवर 50 लाख बेनिफिशियरीज आर फोरकास्टेड टू बी बेनिफिटेड बाय दिस पर्टिकुलर स्कीम। 50 लाख इंडिया वाइड। उसके साथ अगर आगे देखें तो साइलेंट फीचर्स में वेंडर कैन अवेल लोन अप टू ₹10,000। यस, 10,000 तक की लोन उन लोगों को मिल सकती है। दिस स्कीम विल प्रमोट डिजिटल ट्रांजैक्शन। डिजिटल ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है। बैंक से ही हमें मालूम ही है कि लोन का अमाउंट जो है वो अकाउंट टू अकाउंट ही आता है। तो इट विल ट्रिगर डिजिटल पेमेंट्स या डिजिटल ट्रांजैक्शन। इन द फर्स्ट फेज 108 सिटीज हैव बीन सिलेक्टेड। यस, 108 सिटीज सिलेक्ट किए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। अब उनमें जो ये बेनिफिशियरीज है उन लोगों को ये लाभ जो है वो दिया जाएगा। एंड जो सीडीबी है, ये नोडल एजेंसी रहेगी फॉर दिस एंटायर प्रोग्राम। सीडीबी का फुल फॉर्म में याद होना चाहिए, यहाँ हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, मगर ये एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वन ऑफ द ऑर्गन है, तो ये हमें मालूम होना चाहिए, जो इस पूरी योजना की नोडल एजेंसी, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी रहेगी। उसके बाद पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम। नाम देख के लगता है कि यह फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के साथ संबंधी है और इस क्षेत्र में ये जो है कुछ अच्छा काम करने के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। देखेंगे अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल एंड बिजनेस सपोर्ट। यस, फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड बिजनेस सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यह स्कीम लाई गई है। एम टू जनरेट टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹35,000 करोड़। It aims to actually enhance the investment in this particular sector to benefit the number of peoples who are actually involved in this production area. 9 lakh skilled and unskilled वर्कर्स को रोजगारी भी प्रदान करेगी। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। द स्कीम एडॉप्ट्स वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ताकि संपूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित हो सके किसी भी एक निश्चित चीज के उत्पादन में, और इसीलिए ये अप्रोच को अपनाया गया है। माइक्रो एंटरप्राइज विल गेट 35% सब्सिडी ऑन द प्रोजेक्ट कॉस्ट। 35% ऑफ सब्सिडी, ये एक अच्छी बात है। ये मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट्स को ट्रिगर करेगी, मोर एंड मोर एंटरप्रेन्योर्स को जो है ये साहसिक प्रवृत्ति में इन्वॉल्व होने के लिए प्रेरित करेगी। उसके बाद ट्रेनिंग सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड बाय 2 संस्थाओं के द्वारा ये ट्रेनिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। उसमें से प्रथम रहेगी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो कि सोनीपत हरियाणा स्थित है, और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा नेशनल फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ये है थांजावुर में, तमिलनाडु में। दे विल प्रोवाइड द ट्रेनिंग सपोर्ट along with रिसर्च एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो ये भी अपने आप में एक अच्छी बात है। उसके बाद फंडिंग पैटर्न आउटले ऑफ ₹10,000 करोड़। 10,000 करोड़ का फंडिंग पैटर्न भी जो यहाँ रखा गया है, जिसको बाइफरगेट करना है तो अगर नॉर्मल स्टेट है तो 60-40 की पैटर्न रहेगी। अगर नॉर्थ ईस्टर्न कोई स्टेट है तो 90-10 की पैटर्न रहेगी। यूटी विथ लेजिस्लेटिव असेंबली में यही पैटर्न रहेगी, और जो सिर्फ यूटी है उसमें 100% सेंटर के द्वारा फंडिंग होगा। तो दिस इज द ओवरऑल फंडिंग पैटर्न ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम। स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। ये भी हमें याद रखना है कि ये पर्टिकुलर स्कीम जो है वो 5 वर्षों तक लागू होगी, और 5 वर्षों तक इसमें जो है इसके ऊपर काम किया जाएगा, और ये आगे एक्सटेंड भी हो सकती है। और जो आखिरी हमारी जून की स्कीम है वो है गरीब कल्याण रोजगार अभियान, जो कि हमने देखा कि यह एक भाग था जो 1.70 लाख करोड़ का जो कॉर्पस आया था, जो रिलीफ पैकेज आया था, उसका ही भाग है ये। और एक बात यहाँ
मैं भूल रहा हूँ कि ये जो स्कीम है इट इज ऑल्सो ए कॉम्पोनेंट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। तो ये भी एक हमें याद रखना होगा। और इसी के तहत अच्छा जो है उत्पाद करने के लिए स्कीम को लागू किया गया था फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में। अब देखेंगे हमारी जो करंट स्कीम है, जहां तक हम पहुंचे थे, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, जिसके तहत टू एम्पावर, इसका ऑब्जेक्टिव टू एम्पावर एंड प्रोवाइड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी इन विलेजेस, यस, डेडिकेटेड टू रूरल एरिया। साइलेंट फीचर में इट इज अ मैसिव एम्प्लॉयमेंट कम रूरल पब्लिक वर्क्स कैंपेन, मैसिव एम्प्लॉयमेंट कम रूरल पब्लिक वर्क्स कैंपेन, यानी कि 100% इट इज डेडिकेटेड टू द रूरल एरिया। 100% ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों को समर्पित है। अगर इसकी कवरेज की बात करें तो कुल 116 डिस्ट्रिक्ट्स 6 राज्यों में से चुने गए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, झारखंड है और आखिरी में उड़ीसा है। ठीक है, तो ये 6 राज्यों में से 116 डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करता है, प्लस देयर आर 27 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स टू आउट ऑफ 115। और ये जो सब आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ कुल माइग्रेंट वर्कर्स के 2/3 वर्कर्स यहाँ ही रहते हैं। तो कोरोना की वजह से जो अपना काम छोड़कर दूसरे राज्य में से अपने घर लौट गए हैं, तो यहाँ इन लोगों को काम मिले, ऐसे प्राथमिक उद्देश्य से यह स्कीम जो है वो शुरू की गई थी हमारी केंद्र सरकार के द्वारा। उसके बाद एम्फासिस ऑन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, यस, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ इसको अर्बन स्टैंडर्ड्स के साथ मैच किया जाएगा। ठीक है, ताकि जो रोजगारी उत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो बरकरार रहे, वो निरंतर रहे। मल्टी मिनिस्ट्रियल एफर्ट, यस, मल्टी मिनिस्ट्रियल एफर्ट, जिसमें जो प्रथम मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये नोडल है। Along with it, पंचायती राज एंड रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री will also be implementing this particular scheme in the rural areas of India. Campaign is one of the component of 1.70 लाख करोड़ पैकेज जो हमने देखा था, जो गरीब कल्याण योजना थी, जिसके तहत यह जो कॉर्पस है वो लाया गया केंद्र सरकार के द्वारा, तो उसी का ये भाग रहेगी। और जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको, उसके विकास को समर्पित रहेगी। तो आज हमने जनवरी से शुरू की थी स्कीम्स, जो करंट अफेयर्स का भाग बनी हो किसी भी कारणवश, उसको देखा, उसको पढ़ने का प्रयास किया, उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसको भी देखा। हमने 2 जो है वर्गीकरण कर दिए थे, एक ऑब्जेक्टिव्स थे, दूसरे थे उसके साइलेंट फीचर्स। दोनों ही महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव्स हमें जनरली मेंस में काम लगते हैं, और वहीं जो इसके साइलेंट फीचर्स है, इसके जो आंकड़े हैं, तथ्य है, वो हमें दरअसल हमारी प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो यहाँ पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हुआ। राइट फ्रॉम द जनवरी 2020 टू जून 2020 वी विल बी कवरिंग अनदर 6 months इन अ पार्ट 2 लेक्चर विच विल बी प्रोबेबली पब्लिश्ड इन नेक्स्ट वीक। और जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले कुछ सालों में ये गवर्नमेंट योजना है कि योजनाओं की जो वेटेज है हमारे एग्जाम में वो निरंतर बढ़ती जा रही है, इट इज स्टडीली प्रोग्रेसिंग। तो आने वाली परीक्षाओं में, आने वाली स्पर्धात्मक परीक्षाओं में ये हमें 100% फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ ये एक स्पेशल सेशन जो है इसका लेकर आए हैं। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, अगले विषय के साथ, अगले अभ्यास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए UPSC। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।